Hello, my dear aspirants. I hope you all are doing great and your studies are going very, very well. So today we have brought up a video that is basically about the descriptive paper of NABARD, and it is equally relevant for the RBI mains descriptive paper. And again, a disclaimer that this video is not about what is already available on YouTube कि क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट है ना, एंड मैं जब डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तैयार कर रही थी फॉर नबार्ड, देन आई यूज टू वॉच वीडियोज़ कि कैसे यू नो हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, बट आई कुडंट फाइंड यू नो दैट मच मतलब बेनिफिशरी नहीं होता था मेरे लिए, बिकॉज उसमें यूजुअली ये बताया जाता था कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, देन यू राइट, इंक्रीज योर स्पीड, है ना, फिर अपनी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, राइट डेटा, रिपोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट टू डू, है ना, बट इट वाज नॉट अबाउट हाउ टू डू इट. सो दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल अबाउट दैट व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर, व्हाट इज एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कंपल्सरी है एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर इन द जर्नी एंड यू हैव जस्ट स्टेप टुवर्ड्स द जर्नी, आपको सब पता होगा कि ये टॉपिक्स है, ये सिलेबस है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इतना टाइम होता है. एंड आई डोंट थिंक दैट वी शुड वेस्ट टाइम आपका भी in you know discussing all of that. So we are going to discuss the complete and entire depth of understanding towards कि अपनी descriptive की writing skills को कैसे अच्छा करना है, and especially it is going to be a very 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 practical approach, and trust me, you're not gonna actually you'll not feel that it would be a waste of time. After watching this video you'll be entirely satisfied, and I guarantee you that. So let's discuss. So ठीक है, और बीच में कुछ मुझे याद आता रहेगा तो I'll keep on sharing my experiences, my personal experiences. So yes, welcome to the Crack Grade B Mentors, and you're watching with Sonika. So before I just start my video, I want to share that I've written 4 NABARD mains, और उसमें से मैं एक NABARD mains के अपने descriptive के marks I wish to share. So this is my mark sheet for 2023. I hope that is visible. And yes, my name is Sonika Saini, and this is objective marks 25.25, and this is descriptive, that is 43 marks, and it was my very first attempt in mains, and I was very amazed to see my marks, because I think it was one of the highest marks. Actually, it was the highest marks, and many, only few people, I think 5 to 10 people got 43 marks. So I was amazed that, I'm satisfied कि मेरा descriptive तो at least अच्छा है, then I need to go with the objective improvement. So since today we are talking about descriptive paper, so let's begin. Now this is not just a kind of show off, it's just to show you the credibility that you can trust me for preparing your descriptive examination, right? Because एक trust भी होना चाहिए आपके teacher में कि क्या ये is it kind of a blabbering, or she have experienced throughout the entire journey. So जो भी हम बताएंगे, it is based on my personal experiences of 4 years, right? तो चलिए शुरू करते हैं. So मैंने when I was a student, right, तो I used to face various issues कि भाई जीवन में क्या चल रहा है ना, और there are various kind of issues that is being faced by स्टूडेंट्स, जो कि वेरी कर सकते हैं, है ना, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, राइटिंग से रिलेटेड हो, टाइपिंग से रिलेटेड हो, अंडर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो, प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरथिंकिंग एंड व्हाट नॉट, है ना. पीपल जनरली डिस्कस अबाउट वेरी little formal aspect of it, but we'll discuss the informal aspect of it also, कि हमारी जर्नी में हमें क्या क्या इश्यूज आते हैं. फॉर एग्जाम्पल फियर इश्यूज, है ना, फिर आपको कंटेंट इश्यूज आते हैं कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, am I writing well or not, who is going to evaluate my answer, whether it should be a teacher or AI, artificial intelligence and all of that. देन अब मान लो मैंने बहुत सारे PDF पढ़ लिया, आई रेड अबाउट 50 PDFs, और मेरे एग्जाम को 15 दिन बचे हैं, मैं कैसे रिवाइज करूँगी वो 50 PDFs, है ना. तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई कॉन्टेंट, एंड उसके बाद में हाउ विल आई रिवाइज इन द लास्ट 2 days, बिकॉज आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, देन देयर इज नो पॉइंट, राइट, इफ यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट दैट एंड रिप्रोड्यूस दैट इन द एग्जामिनेशन होल. देन द टाइपिंग इश्यूज, मेरा सबसे बड़ा इशू टाइपिंग इशू था गाइज, बिकॉज मेरी टाइपिंग स्पीड इज एवरेज, इट इज़ 25 वर्ड्स पर मिनट, एंड आई थिंक इट्स एवरेज ओनली बिकॉज यूजुअली अगर आप टाइम और नंबर ऑफ वर्ड्स को कंपेयर करेंगे, इट शुड बी 30 वर्ड्स पर मिनट. बट मैं आपको बताऊंगी कि टाइपिंग
इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं, देन हाउ यू हैव टू डील विद इट, है ना, कैसे नहीं घबराना है एंड उसको डील कैसे करना है, विल डिस्कस इट एट द एंड ऑफ इट, राइट, जैसे जैसे आगे स्लाइड आएंगी। तो ये हमारा आज का स्ट्रक्चर रहने वाला है, जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले अगैन वेरी फर्स्ट थिंग इज फियर इश्यूज, है ना। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि, मैं भी सोचती थी, लैक ऑफ बैकग्राउंड, नहीं पता कैसे लिखना है, मैंने थोड़ी यूपीएससी लिखा है, मुझे कहाँ से आएगी राइटिंग, मैं तो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, आई जस्ट नो क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश, यू नो, मुझे तो ऑब्जेक्टिव अच्छा आता है, मैं कैसे करूँगी, मेरे पास तो बैकग्राउंड ही नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है। देन लॉन्ग गैप इन राइटिंग प्रैक्टिस, द पीपल हु आर यू नो ग्रेजुएशन के 2-3 साल बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद करते हैं बट फिर भी 2-3 साल उन्हें एग्जाम्स में है प्रोसेस में, एंड दे आर जस्ट स्टक एट द प्रीलिम्स फेज एंड दे डिडंट गेट द चांस टू प्रैक्टिस फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एंड स्पेशली दे डिडंट गेट चांस की मेंस लिखना है, तो लॉन्ग गैप हो जाता है, फिर आपको डर लगता है मुझे तो लिखना नहीं आता। देन कंफर्ट विद पेन एंड पेपर, सो ये मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज मुझे पर्सनली पेन एंड पेपर बहुत पसंद है, आई एम वेरी बैड इन टेक्निकल थोड़ा सा, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो कोई पेन पेपर दे दे, मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, मुझे वो अच्छा लगता है, आई कैन मेक माइंड मैप्स, आई कैन मेक टेबल्स एंड चार्ट्स, बट यू डोंट गेट टू शो ऑल ऑफ दैट इन दिस एग्जामिनेशन, यू कांट मेक फ्लो चार्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। फिर आता है आपका कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो इन राइटिंग एबिलिटी, है ना, बिकॉज यू बेसिकली कंपेयर योर सेल्फ विद योर कॉम्पिटिटर्स, और वहीं पे हम एक बैक स्टेप ले लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम आई थिंक हम यही फेस करते हैं, दैट वी कंपेयर आवर सेल्फ विद पहले वाले कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लाइन एंड यू कंपेयर योर सेल्फ विद माई जर्नी, तो आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट अप्रोच, है ना। पहले आप उस लेवल पे पहुँचे, फिर आप कंपेयर करें, तो दैट वुड बी मोर आई वुड से फीजिबल। तो ये आप कंपेयर मत करना, अपने आप को सेल्फ डाउट मत करना, जब तक कि आप उस लेवल पे पहुँचे ही नहीं हो, देन देर इज़ नो नीड टू कंपेयर योर सेल्फ। बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू राइट मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव में, तो मैंने शायद इतनी पढ़ाई नहीं की होती थी, फिर मैं मॉक्स लिखती थी, देन आई यूज्ड टू गेट डिजेक्टेड कि मैं तो मार्क्स नहीं आ रहे, फिर मैं अपने आप को बोलती थी कि भाई तूने पढ़ाई ही नहीं की तो तुझे मार्क्स कैसे आएंगे। तो जब आप कंप्लीटली पढ़ लो, एटलीस्ट 80% ऑफ द सिलेबस कवर कर लो, आपने 100% उस पर मेहनत कर ली है, तब आप अपने आप को कंपेयर करो और सेल्फ डाउट मत करना, ठीक है। डू नॉट सेल्फ डाउट योर सेल्फ, बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट इट विल हैम्पर योर परफॉर्मेंस, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल में ही क्यों ना हो। और ये बहुत 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 मतलब गहरी सच वाली बात है। इफ़ यू आर लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, नाइट ओवर कॉन्फिडेंट, लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, तो आपका टाइपिंग स्पीड, आपकी फ्लो ऑफ थॉट्स वो ऐसे रन करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू डील विद कम्प्लीटली कि फॉर्मली कैसे चलेगा, आई एम ऑल्सो हेयर टू डील विद योर परफॉर्मेंस प्रेशर्स, फियर प्रेशर्स, वल्नरेबिलिटीज़ जो भी होती हैं। ओके, सो डो नॉट थिंक अबाउट ओवर थिंकिंग, दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग पॉइंट कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है। ओके, तो ये सब मुझे आपके फियर इश्यूज़ में आपको डिस्कस करना था कि प्लीज़ ये सब मत करना। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ मेंटरशिप प्रोग्राम एक्चुअली लॉन्च्ड ऑन 1st of April, और उसमें आप दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मेंटरशिप गाइडेंस। आपका एक जूम सेशन होगा वीकली, एंड प्रोबेबली आई विल बी देयर टू मेंटर यू specifically for NABARD, not RBI. So yes, we can deal with such issues, whether it's related to the exam and whether it's related to stuff like that you're not feeling good and how to study and what to study, I'm not able to progress. So you can take that mentorship guidance thing, है ना? Okay, at our CGB Mentors website, I'll show you at the last. ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि अब लोगों को लगता है कि कंटेंट कहाँ से पढ़े, है ना, और कितना पढ़ना है ये सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज, जब भी आप अपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करेंगे, अब आप इस पे डिपेंडेंट मत हो जाना। डिपेंडेंट इन द सेंस कि ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूट वी कैन प्रोवाइड यू द कंप्लीट एनालिसिस, राइट। आपको PYQs दे दिए जाएंगे, बट आपका टास्क फिर वहाँ से स्टार्ट होता है। सपोज करो मैंने आपको कहीं से आपको PYQs मिल गए, राइट, हमारी वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगा। नाउ अब मान लो आपको PYQs मिल गए, देन यू हैव टू चॉक डाउन द थीम्स, इज इट विजिबल, यस, देन यू हैव टू चॉक डाउन द थीम्स कि भाई NABARD पूछ क्या रहा है, ठीक है, एंड देन यू कैन मेक अ टेबल और यू कैन एनालाइज योर सेल्फ, राइट। आपको समझ में आएगा कि NABARD हमेशा
1 से 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिलेटेड पूछेगा ही पूछेगा, है ना। एग्रीकल्चर के जो इश्यूज होते हैं वो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, है ना। लेट मी जस्ट राइट, अदरवाइज माई वीडियो बिकम्स वेरी फास्ट। ओके, या फिर वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में पूछ लेगा, या फिर वो MSP के बारे में पूछ लेगा। Since NABARD is all about agriculture and rural development, so we can expect कि agriculture की themes तो होनी है, तो we cannot leave anything about agriculture, चाहे वो प्री मार्केटिंग हो, पोस्ट मार्केटिंग हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो, ठीक है। फिर आप उसको ऐसे सोचें, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, राइट, फार्मर इश्यूज होते हैं, यानी ऑन लैंड, आफ्टर दैट फार्मिंग हो गई है, पोस्ट फार्मर इश्यूज होते हैं, यानी कि लेट्स से मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। फिर उसके बाद दे कैन बी इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल, है ना, कि हमारा एक्सपोर्ट अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे फार्मर्स सुसाइड्स कर रहे हैं, और हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो इतना है, फिर भी हम वाई इज द थिंग दैट हमारा एक्सपोर्ट्स इतना कम क्यों है, वाई, बिकॉज वी आर नॉट प्रोसेसिंग आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट गेटिंग वैल्यू इन द फॉरेन कंट्रीज एज इन। तो आपको ये समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर इज अ थीम जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो लेट्स से फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आपको इकोनॉमी से रिलेटेड पाएगा। अभी जो रिसेंट नाबार्ड का मीन्स हुआ था, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे दे हैव आस्क्ड अबाउट द WTO, राइट, दे हैव आस्क्ड समटाइम्स दे WTO तो था, और फॉरेन एक्सपोर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग ऑन आर इकोनॉमी। फिर आपको समझेगा कि एक बार फिनेंशियल इंक्लूजन पे भी क्वेश्चन था, सिंस द सिलेबस इज ESI, सो इकोनॉमिक पोर्शन में आपको फिर यहाँ पे एक फिनेंशियल इंक्लूजन का भी एक क्वेश्चन था, एंड दैट वाज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, है ना। तो आपको समझेगा कि भाई मुझे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी जो है करने हैं, तो ये थीम्स, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप खुद नहीं करेंगे एंड क्योंकि इस चीज़ में आपको कोई स्पून फीड नहीं कर सकता, आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी दैट यू हैव टू जॉट डाउन ऑल द थीम्स दैट आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप थीम्स नहीं पता करोगे आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आई थिंक व्हेन आई से दैट दीज आर द की टॉपिक्स एंड थीम्स, दैट इज द थिंग विच यू नीड टू कवर, राइट। उसके बाद दे ऑल्सो आस्क स्कीम्स, जैसे उन्होंने डायरेक्टली पिछली बार, नॉट दिस टाइम, दे हैव डायरेक्टली आस्क्ड अबाउट द विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है, दे हैव आस्क्ड अबाउट द विश्वकर्मा स्कीम। उसके बाद उन्होंने पूछा था PM स्वनिधि, एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा था दोनों, एंड उसको आप डिवाइड कर सकते थे मार्क्स में कि कितना लिखना है और कैसे लिखना है, 400 वर्ड्स, तो डेफिनेटली 200 वर्ड्स ईच। तो जो स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, करंट में होती है, और PIB में बहुत बारी बारी आ रही है, वही स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट होती है। एंड क्रैकडेट भी आपको लास्ट में एक PDF प्रोवाइड करता है, दैट इज दीज आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स दैट यू आर सपोज टू बी कवर्ड फॉर द डिस्क्रिप्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव, फॉर द डिस्क्रिप्टिव। आप वही कर ले, दैट इज रियली 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 मोर देन इनफ। सिंस आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ CGME मेंटर्स, सो आई कैन गारंटी दैट, राइट, क्योंकि मैं वही करती थी जो मुझे बोला जाता था। ओके, फिर रूरल डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर इश्यूज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, PYQs को कैसे एनालाइज करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, तो वो आपको ट्रेंड्स एंड क्वेश्चन पैटर्न्स नोटिस करने हैं, और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि अब जो है क्या चल रहा है PIB में, गवर्नमेंट किस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा बातें कर रही है, इज इट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और ऑल्सो अबाउट द इश्यूज। जैसे इन्होंने एक बार पूछा था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज हैपनिंग, जैसे इन्होंने एक बार पूछा था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब क्यों चाहिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? यू ऑल्सो नो दैट इंडिया का जो एग्रीकल्चर है दैट इज कम्प्लीटली मोनोकल्चर पैटर्न्स, राइट, कम्प्लीटली मोनोकल्चर है। सो इट इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन लैंड, रिसोर्सेज, वाटर, फिर हमारी ज़मीन खराब हो रही है एंड व्हाट नॉट। तो वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर थिंग एंड नॉट शैल बी डिपेंडेंट ऑन व्हीट एंड राइस ओनली, एंड दैट इज़, फिर हम उसको, मैं आगे बताऊंगी कि सपोज ये क्वेश्चन है तो उसको कैसे बाइसेक्ट करना है, कैसे उसके पॉइंट्स क्यूरेट करने हैं, फिर पॉइंट्स में भी सब पॉइंट्स कैसे क्यूरेट करने हैं, तो आई लेट यू नो। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, जैसे मुझे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है तो आई कैन टेल कि व्हाट आर द इश्यूज, है ना, वही मोनोकल्चर, है ना, लिख देती हूँ मैं आपके लिए, दिख रहा है, यस, जस्ट we need crop diversification because of the monoculture. Then this monoculture is leading to soil degradation, right, because आप एक ही टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, एक ही टाइप की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ के जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं वही सेम जो भी हो रहा है, एंड soil is degrading, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन के बाद देन देयर इज
exploitation of water resources. As you know that rice demands a lot of water, right? अगर आप same pattern follow करेंगे then you are exploiting the water resources, है ना? ये हो गए issues. After that crop diversification में आप फिर क्या बताओगे कि why do you need, right? You need, अब इसमें भी आप बाइसेक्ट कर सकते हैं. अगर आप इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से डालेंगे, लेट मी जस्ट रब दिस वंस. ठीक है, ठीक है. अगर हम व्हाट वाज आई सेइंग, लेट्स से आप सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, राइट? इम्पॉर्टेंस क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के? आप लिख सकते हो कि भाई देखो इकोनॉमी लेवल पे इम्पॉर्टेंस है. इकोनॉमी लेवल पे इम्पॉर्टेंस होते हैं क्यों? बिकॉज मुझे जीडीपी बढ़ानी है, मुझे अपने फार्मर्स की इनकम को डबल करना है. आई नीड टू डबल माई फार्मर्स इनकम, राइट? आफ्टर दैट आई नीड टू इंक्रीज माई एक्सपोर्ट्स. मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, यू जस्ट नीड टू ओपन योर ईयर्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द वर्ड्स, लिसन माई वोकल्स. ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोशल, राइट? मुझे सोशल लेवल पे भी ज़रूरत है व्हेन आई नीड टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. फॉर एग्जांपल आई नीड टू रिड्यूस द फार्मासिसाइड्स. एंड जब एक ही फार्मर सारी चीज़ दोबारा चीज़ लगा देता है, देयर इज़ लॉस, राइट? बिकॉज देयर इज़ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, देयर इज़ डिग्रेडेशन. इज इट, आई थिंक दैट्स नॉट विजिबल, लेट मी टेक येलो कलर. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई डिडंट नोटिस. ठीक है, ओह. तो अब ये क्या हो गया कि अगर मुझे इंपॉर्टेंस करना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, तो देयर इज फार्मासिसाइड्स, तो आई कैन हैंडल विद द फार्मासिसाइड्स ऑल्सो. फिर मैं एक अलग एस्पेक्ट बनाऊंगी कि मुझे इंपॉर्टेंस बताना है, तो इट इज़ एनवायरमेंट, है ना? एनवायरमेंट को भी मैं डील करना चाहती हूँ, राइट? सो दैट इट कैन बी बेनिफिटेड फॉर द सोयल, है ना? इट कैन बी बेनिफिट सो दैट वाटर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो. ठीक है, उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि गवर्नमेंट स्कीम्स, व्हाट आर द अवेलेबल गवर्नमेंट स्कीम्स जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की टुवर्ड्स ले जाते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन देयर इज़ हॉर्टिकल्चर मिशन कि भाई देन आपको मोनोकल्चर पैटर्न नहीं करना है ना? आपको हॉर्टिकल्चर भी करना है. हॉर्टिकल्चर मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. व्हाई आर यू गोइंग टुवर्ड्स व्हीट एंड राइस? तो ये स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर. फिर आप लिख सकते हैं कि जैसे मान लो मैं अभी अपना जो मिशन है, मिशन आत्मनिर्भर, अभी ये यहाँ नहीं दिख रहा है, मिशन आत्मनिर्भर फॉर पल्सेस. ठीक है, ये भी एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन ही हुआ. अब आपको कोई नहीं बताने वाला यहाँ पे कि यू नो कि अरे ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में लिखना है. ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मैं मिशन आत्मनिर्भर फॉर पल्सेस लिखूंगी, इट्स अ काइंड ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा पहले से ही, नॉट इन द एग्जाम हॉल, पहले से ही. एंड वंस यू डू दिस प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 5 to 10 times, एंड ऑटोमेटिकली द फ्लो ऑफ थॉट्स कम इनटू योर माइंड. लास्ट में हम फिर वे फॉरवर्ड बताएंगे कि भाई और क्या अच्छे से कर सकते हैं. सो एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा हम उसको माइंड मैप्स बनाएंगे और कैसे हैंडल करना है, आई विल शो यू दैट. ठीक है, तो इस स्लाइड के लिए इतना ही. आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज इफ़ यू आर अ बिगिनर देन ये बहुत ज़्यादा आई थिंक पाइलअप भी हो सकता है इन दिस, कि एक बार में इतना सारा ज्ञान हो गया, मैं कैसे इसको हैंडल करूँगा. ठीक है, फिर आता है कंटेंट इश्यूज़, कि अब मान लो अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आपको ऑब्वियसली कंटेंट इशू होने वाला है कि मैं एक चीज़ जो है कहाँ से पढूं, है ना? बहुत सारी जो थिंग्स है आपने चॉक डाउन तो कर लिए, आपने सिलेबस तो देख लिया है, बट मैं पढूं कहाँ से? तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप या तो आप गूगल पे जाओ, आप टॉपिक वाइज रिसर्च करो. टॉपिक वाइज रिसर्च करने का मेरे कहने का मतलब है, लेट्स से यू सर्च फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. आप गूगल करेंगे, देयर विल बी सो मेनी वेबसाइट्स आउट देयर. मैं क्या करती थी व्हेन आई वाज इनिशियली नॉट लाइक बाद में, तो आई यूज्ड टू गूगल इट एंड आई यूज्ड टू सी वेरियस वेबसाइट्स स्पेशली फॉर यूपीएससी, क्योंकि वहाँ का कंटेंट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होता है. और मैं उसको रीड करती थी और मैं समझती थी कि अच्छा ऐसे लिखना है उसको. एटलीस्ट तुम्हें आपको ये पता चल जाएगा कि ये इस चीज़ को ऐसे लिखना है. आप वहाँ से कंटेंट बना सकते हैं खुद का, है ना? कैसे बनाना है वो मैं बाद में बताऊँगी. एज आई सेड, गूगल सर्च, है ना, या फिर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ऑलरेडी जो अवेलेबल है.
Then you can use AI. When I was preparing, there was no ChatGPT in 2023, I think. हाँ, उस वक्त नहीं था. So अब मान लो आपने पढ़ लिया है, but you're not sure कि ये लिखना है या कितना लिखना है, then आप सेम चीज़ आप ChatGPT से पूछो. बट इसका प्रोज ये है कि आपको एक रेडी टू मेड ऑफ आंसर मिल जाएगा. बट व्हेन आई वाज यूजिंग ChatGPT, व्हाट आर द कॉन विच आई फेस. ठीक है, सबसे पहले ChatGPT क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बता देती है, एंड दैट इज़ डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड. तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई जस्ट गिव मी अ सिंपल लैंग्वेज बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट द एग्जाम, यू कैंट बी सो कॉम्प्लेक्स, राइट. आप उसको ये बोलो. दूसरी बात, आप उसको ये बोल सकते हो, बिकॉज वो नहीं बताएगी आपको डेटा रिपोर्ट्स, वो नहीं बताएगी. यू हैव टू टेल दैट ओके, आई वॉन्ट माई आंसर दैट इंक्लूड सर्टेन, आई वॉन्ट टू फैक्ट्स, है ना. दैट फैक्ट्स कैन बी रिलेटेड टू रिपोर्ट्स और एनी काइंड ऑफ मिनिस्ट्री डेटा, एंड दैट शैल बी लेटेस्ट. थर्ड चीज़ आपको उसको ये बताना है कि यू हैव टू गिव मी स्कीम्स दैट आर रेलिवेंट फॉर दिस टॉपिक. लेट्स से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात हो रही है, आपको ये बताना है कि दैट यू हैव टू गिव द स्कीम्स दैट इज NABARD रेलिवेंट टू राइट इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि मुझे 5 या 4 एग्जाम्पल्स देने हैं मेरे आंसर्स में, तो वो उसके अकॉर्डिंग बता देगी, है ना. तो आप ChatGPT का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो वाइल राइटिंग योर और ऑर्गेनाइजिंग योर दिस थिंग कंटेंट. और अगर ये सब भी नहीं करना है आपको, देन यू कैन टेक द स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ एट द CGP मेंटर्स. कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है या मुझे एक बना बनाया कंटेंट चाहिए, उस पर भी आपको नो डाउट मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ मिसिंग है या मेरा आंसर इस चीज़ से अच्छा हो सकता है, तो आपको उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी. तो आप CGP मेंटर्स पे अगर आपने कोर्स लिया है, देन द थिंग्स एंड टास्क आर ईजी फॉर यू, बिकॉज एज पर द सिलेबस दे गिव यू द स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, प्लस दे ऑल्सो गिव यू थीम वाइज कि वुमेन है तो ये ऐसे ये थीम्स हैं. फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट है तो ये थीम्स है. फॉर एग्जाम्पल रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन अगेन एग्रीकल्चर के ये थीम्स हैं. थीम वाइज आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रेडी टू use answers. And ready to use answers, when I say that means it is going to be very comprehensive. ऐसा नहीं है कि आपको वो सब लिखना है, you have to chalk down it that कौन कौन से पॉइंट्स आपको ज़्यादा रेलेवेंट लग रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स यू आर एबल टू मेमोराइज इट, एंड कौन कौन से इस करंट एस्पेक्ट से रिलेटेड है ना. ठीक है. तो ये आ गया आपका फियर इश्यूज एंड कंटेंट इश्यूज, मैं आपसे ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ. अब आते हैं राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज. ठीक है, जस्ट अ मिनट. सो नाउ यू नो कि मुझे अपने फियर्स को कैसे हैंडल करना है. नाउ यू नो कि मुझे कंटेंट कहाँ से पढ़ना है. बट अभी आपको ये नहीं पता कि मैंने जो सब पढ़ा है उसको मैं अडेप्ट कैसे करूँ इन माई राइटिंग, है ना. मैंने पढ़ तो लिया है, बट मैं लिखना कैसे सीखूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू राइट इट, नॉट द कंटेंट स्टफ एंड ऑल. वो मैंने इसलिए बताया था कि आपको एक होलिस्टिक वीडियो मिल जाए, एंड यू आर नॉट सपोज कि एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाए बेसिकली. ठीक है, नॉट सपोज तो कुछ नहीं आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. सो हाउ टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट एंड हाउ टू प्रिपेयर. मे बी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो इश्यूज़ मैंने फेस करे हैं वो अगर मैं जहाँ पे सब बता दूँ तो आपको एक ट्रायल एंड एरर अप्रोच नहीं होगा. तो वाई नॉट टू लर्न फ्रॉम द माई मिस्टेक्स एंड माई थिंग्स. ठीक है, मिस्टेक्स तो नहीं बोल सकते, बट हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं वो सब बोल सकते हैं. लेट्स टेक येलो कलर बिकॉज इट्स वाइट स्क्रीन. ठीक है, सो रीड वंस एंड राइट इमीडिएटली. जैसे कि सपोज मैंने क्या किया, CGP का मैंने एक थीम उठा लिया, है ना. मैंने उसको पढ़ लिया, बहुत सारा कंटेंट होगा उसमें. लेट्स से एक चीज़ के 10 पॉइंट्स है, मुझे लिखने हैं एग्जाम में 4 या 5. फिर आपको क्या करना है, आप पहले उसको रीड करो और उसी वक्त यू ट्राई टू राइट इमीडिएटली. वाई आई एम सेइंग इमीडिएटली, क्योंकि अगर आप आज पढ़ेंगे और कल उसको लिखेंगे तो आपके फ्लो ऑफ थॉट्स नहीं आएंगे, और फ्लो ऑफ थॉट्स नहीं आएंगे, आप कल कम अच्छा लिख पाएंगे. देन यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील लाइक कि मुझे तो आता ही नहीं है कुछ लिखना. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब उस चीज़ को रीड कर रहे हैं आपको उसी वक्त लिखना है. उसी वक्त आई मीन टू से विद इन 5 मिनट्स, है ना. या ऐसा करो कि अभी पढ़ लिया है, 15-20 मिनट बाद ब्रेक लेके कि हाँ ये चीज़ है, देन यू राइट इट.
कितना ही बुरा क्यों ना लिखा हो, बट लिखो एक बार। डजेंट मैटर कि वो आपके विद इन मिनट्स में जा रहा है, डजेंट मैटर आपकी स्पीड कैसी है, डजेंट मैटर वेदर योर कंटेंट इज ऑर्गेनाइज और नॉट, वेदर यू हैव रिटन इंट्रो कंक्लूजन और नॉट, इट डजेंट मैटर, राइट। इट डजेंट मैटर कि आपने रिपोर्ट्स मिस कर दी, स्कीम्स मिस कर दी, बिकॉज यू कैन नॉट बी परफेक्ट, राइट। इनफैक्ट आप जब एग्जाम हॉल में लिखने जाएंगे तो लेट्स से आप एग्जाम घर पे 100% परफेक्शन की खोज कर रहे हैं, बट एग्जाम में आप वहाँ पे 80% या 75% भी कर देंगे ना, लाइक इट इज़ वेरी 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 गुड। जो आपने सोचा है उसका 75% आई मीन टू से, तो आप उसको उसी वक्त लिखे। डू नॉट वरी अबाउट द क्वालिटी एंड थिंग, राइट। उसको लिखने के बाद यू जस्ट हैव टू इवेल्युएट योर आंसर कि ये अच्छा हो सकता था, है ना। मैंने शायद इंट्रो में कंक्लूजन लिखना भूल गया या भूल गई, मैं इसमें डेटा डाल सकती थी, मैं इसमें करंट रिपोर्ट्स डाल सकती थी, तो वो चीज़ आपको फिर इवेल्युएट करनी पड़ेगी, राइट। सपोज सेम थिंग नेक्स्ट डे, देन यू कैन री राइट विद इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है जस्ट अभी कि अरे समटाइम्स क्या होता था, मैं लिखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं तो डेटा लिखना भूल गई, ठीक है, हम जब नेक्स्ट टाइम कोई भी आंसर लिखेंगे, नॉट नेसेसरीली आप वो चीज़ सेम क्वेश्चन पे ट्राई करो, आप दूसरे क्वेश्चन या दूसरे थीम दूसरे टॉपिक पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये डेटा हो गया, ये रिपोर्ट हो गई, ठीक है। तो आप वो चीज़ ऐड कर सकते हो एंड स्पेसिफिकली यू शुड राइट दोज डेटा ऑन दोज रिपोर्ट्स। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, मैं पहले आपको ये बता दूं, कोई भी डेटा, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी स्कीम जो भी आप अपने आंसर में इनकलकेट करेंगे, अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, पीआईबी पढ़ेंगे, वो डेटा ऑलरेडी आप मेमोराइज कर चुके होंगे, आपको उसी का इस्तेमाल करना है। यू आर नॉट सपोज टू कलेक्ट हेल लॉट ऑफ डेटा विद इन योर माइंड, बिकॉज फिर वो कुछ भी याद नहीं रहेगा, एक्चुअल भी नहीं रहेगा और वो भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिंक करना है विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो, कि करंट अफेयर्स में किसी ने कोई कमेटी में आई है, उसका कुछ रिकमेंडेशन है, राइट, या कोई भी इशू करंट में चल रहा है ना, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वॉर चल रही है और मुझे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, तो आई कैन राइट दैट द प्रेजेंट वॉर्स आर पुटिंग इम्पैक्ट्स ऑन फॉरेन एक्सपोर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप उसको लिखें, दोबारा लिखें विद लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। मैं आपको एक आंसर लिख के दिखाऊंगी लास्ट में, लेकिन कैसे होना चाहिए, एंड आई विल शो माई ओन PDF जो मैंने ऑर्गेनाइज की थी खुद के लिए। इट इज़ 100 पेज PDF, बट यू डोंट हैव टू गेट ओवरवेल्म्ड कि 100 पेजेस का बनाना है, नहीं। ये 4 साल की मेहनत है। अगर आप शुरू में एक PDF बनाएंगे, इट विल बी मैक्सिमम ऑफ 40 to 50 पेजेस। कैसे बनानी है, लेट यू नो आगे। फिर आप क्या करोगे, माइंड मैप्स। अभी तक के आप जो भी कंटेंट कर रहे थे, दैट वाज जस्ट यू आर राइटिंग इट, यू आर इम्प्रूविंग इट। आप ये 7-8 क्वेश्चंस के साथ करो। अभी क्या होगा कि यू विल बी हैबिचुअल टू बेसिकली रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट एंड इम्प्रूव दैट। बट नाउ यू नीड आपका कंटेंट स्ट्रक्चर्ड हो, तभी आपको इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। क्योंकि अगर आप यही करते रहेंगे, आप माइंड मैप्स नहीं बनाएंगे, तो आपका स्ट्रक्चर नहीं होगा, है ना, आंसर। एंड फॉर दैट मैटर अभी तक आपको आई गेस ये पता होना चाहिए कि दैट योर paper is not checked manually, it is being checked by artificial intelligence. RTI में कुछ भी आया हुआ हो, बट सच यही है कि AI आपका पेपर चेक करती है, और AI बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। AI को सब स्मूथ चाहिए, AI को सब स्ट्रक्चर चाहिए। दैट डजेंट मीन कि आपको AI की तरह परफेक्शन की तरफ भागना है। इट जस्ट मीन्स कि यू जस्ट हैव टू बी लिटिल नियर कि भाई थोड़ा सा हमारा कंटेंट स्ट्रक्चर्ड हो। क्योंकि आई थिंक जो NABARD अपने पैरामीटर सेट करता होगा वाइल चेकिंग द पेपर, तो वो इतना ज़्यादा हार्श नहीं होगा, इट विल बी अ स्मूथ। तो थोड़ा सा तो कंटेंट आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। माइंड मैप्स अगेन कैसे बनाने हैं, विल सी अभी जब हम आंसर लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आंसर क्या करना है, हम माइंड मैप्स बनाएंगे वन आई विल बेसिकली ट्राई टू राइट एन आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस रिपीटेडली, रीराइट आंसर्स टू रिफाइन स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। दैट डजेंट मीन कि आपको एक आंसर दोबारा लिखना है। इट जस्ट मीन्स कि जब आप माइंड मैप्स बनाएंगे, माइंड मैप्स जैसे मैंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक माइंड मैप बनाया था, वेन एवर यू ट्राई एन आंसर राइटिंग, गिव योर सेल्फ 1 minute और 30 seconds और 2 minutes, है ना, टू बेसिकली पेन एंड पेपर पे, नॉट कि माइंड में, पेन एंड पेपर पे एक स्ट्रक्चर बना ले, सो दैट योर इंपॉर्टेंट पॉइंट आर नॉट मिस्ड। और जब आपके पास वो पॉइंट्स रहते हैं, इट इज़ वेरी 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 इज इन द एग्जामिनेशन कि आप बस साइड में देखो, हाँ मुझे नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है, साइड में देखो मुझे नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है। अदरवाइज क्या होता है ना, एग्जाम में मैंने एक पॉइंट खत्म कर दिया, मुझे दूसरा पॉइंट याद ही नहीं आ रहा कि अच्छा इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए। और जब हम माइंड मैप्स बनाते हैं तो हम इररेलेवेंट पॉइंट्स छोड़कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
को भी ध्यान में रखते हैं। तो जब आप यहाँ तक पहुँच जाए, आप 10 क्वेश्चन ऐसे लिख लें, देन यू शुड बी एबल कि आप माइंड में बनाओ पहले 1.5-2 मिनट एंड देन यू ट्राई टू राइट योर आंसर, राइट। कैसे लिखना है, विल स्टिल कम टू दैट। अगेन प्रैक्टिस रिपीटेडली। अच्छा ठीक है। नाउ कुछ लोग क्या, मैं भी पहले ऐसी ही थी, मैं बोलती रहती थी अरे मेरे को आता सब है, मुझे लिखना आ रहा है बट मेरे तो स्पीड ही नहीं है, या फिर मैं क्वालिटी पे ध्यान ना देकर आई यूज टू फोकस ऑन माय स्पीड। में टाइपिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे पहले, और तो मतलब ऐसे पेन एंड पेपर में तो स्पीड अच्छी है बट टाइपिंग स्किल्स में नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, वी फोकस ऑन द क्वालिटी, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, माइंड मैप्स, हम टाइपिंग पे भी ध्यान देते हैं, वो हो नहीं पाएगा। आप पहले क्या करो, 10 से 15 क्वेश्चन, जस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी, फोकस ऑन योर आंसर्स, क्योंकि आई टेल यू व्हाई। ठीक है, सपोज यू आर राइटिंग एंड यू फोकसिंग ऑन द स्पीड, सो व्हाट विल हैपन दैट योर माइंड विल फोकस ऑन द टाइपिंग स्पीड एंड योर द फ्लो ऑफ थॉट्स जो एक आंसर के होने चाहिए वो पीछे रह जाएंगे। So it's better first you organize your thoughts in a well content manner, and when you'll organize your thoughts and when you're obviously confident now कि मैं एक अच्छा आंसर लिख सकती हूँ, then definitely you can increase your speed so that आपका जो mind है वो speed and what do we say, the content के जो flow of thoughts है वो balance करे, है ना। क्योंकि मैंने कई बार ऐसी गलती की है कि बिना स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के मैं टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो इट हैपन्स दैट योर फ्लो ऑफ थॉट्स आर लिटिल not fast, but you're trying to increase your speed, so it's better to make a balance out of it। तो ये बहुत ज़्यादा important है कि आप बहुत ज़्यादा घबराइए मत, है ना, और अपने कंटेंट पे पहले ध्यान दीजिए 15-20 क्वेश्चंस तक। जैसे ही वो होगा, आई जस्ट गारंटी यू, फिर आप टाइपिंग स्पीड पे ध्यान देंगे, फिर एक समय ऐसे आएगा दैट यू विल बी प्रो इन बोथ, है ना। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, टाइपिंग इश्यूज़ कि बिकॉज कई, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुकी हूँ बट मैं ये शायद मिस कर गई हूँ कि ना क्या होता है समटाइम्स, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ नहीं है, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट लिखते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, है ना, यू ट्राई टू राइट 30 वर्ड्स पर मिनट, 35 वर्ड्स पर मिनट, ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते। ऑल आई एम सेइंग व्हेन योर स्पीड इज़ नॉट बट यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर स्पीड, इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि व्हेन यू टाइप इट यू मेक अ लॉट ऑफ एरर्स, यानी आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो। जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आप बारी बारी बैक स्पेस दबाओगे, बारी बारी, तो इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब आपको लगेगा मैम क्या बता रही है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते होंगे उसको, और ये एक मेजर इशू था मेरी प्रिपरेशन में, एंड आई थिंक व्हाई नॉट टू शेयर। तो बारी बारी बैक स्पेस करोगे, डिलीट करोगे, बैक स्पेस करोगे, डिलीट करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो उससे क्या होगा, इट विल अफेक्ट्स योर एंटायर स्पीड। इट और सबसे गंदा पता है क्या होगा, आप लिखना चाह रहे हो बट आप डिलीट कर रहे हो, यानी कि आपके फ्लो ऑफ थॉट्स ब्रेक होंगे, और जब सॉरी आई थिंक आई एम टॉकिंग वेरी स्पीडली, तो जब आपके फ्लो ऑफ थॉट्स ब्रेक होते हैं ना तो बहुत दुख होता है कि अरे मुझे क्या लिखना था। पेन एंड पेपर पे तो ऐसा नहीं होता ना, टाइपिंग में तो ऐसा होता है कि आपको बहुत कुछ लिखना है बट आपको टाइपिंग में वो फ्लो ऑफ थॉट्स नहीं आ रहे हैं, राइट नाउ। तो इट्स बेटर कि आप मीडियम एवरेज लिखें, बट उससे क्या होगा, आपके एरर्स नहीं आएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस योर थॉट्स वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी स्पीड मत बढ़ाइए, ऑल आई एम सेइंग इज फर्स्ट फोकस ऑन दिस थिंग रादर देन इंक्रीजिंग योर स्पीड, एंड देन यू कैन शिफ्ट टू इंक्रीज योर स्पीड। मेरा 25 वर्ड्स पर मिनट था, इट वॉज एवरेज, आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट 30, बट देन आई रियलाइज कि मेरे लिए यही अप्रोच है। आपको अपनी क्या अप्रोच है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भले ही एक क्वेश्चन जो है, लेट मी डिस्कस दिस, 600 वर्ड्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना, और 2 क्वेश्चन 400 वर्ड्स के आते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 600 वर्ड्स ही लिखना है। उस वक्त आपको एग्जाम में ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना कंटेंट है, मैं कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकती हूँ, कि कौन से क्वेश्चन से मैं कंफर्टेबल हूँ, कौन सा मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, वो सब आपको खुद देखना पड़ेगा अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार। एंड अब मान लो 600 वर्ड्स का है, तो आई बिलीव कि अगर आप 400 वर्ड्स भी लिखते हैं दैट इट इज़ मोर देन इनफ। ऐसा नहीं है कि आपको 600 ही लिखना होगा, आप नहीं कर पाएंगे वो, मतलब आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज आई ऑल्सो डिड दिस टाइम,
मैंने 500 वर्ड से ज़्यादा ही लिखे थे, कोई 550 था, कोई 570 था, बट ऑल आई एम सेइंग इज़ कि लेट्स से आप 550 अप्रोच कर रहे हैं तो आप 525 तो लिख ही लेंगे, है ना। मैं 500 बोलूँगी तो आप 425 लिखाएंगे, फिर बोलेंगे मैम ने बोला था 500 लिखना है। डोंट डू दैट। जस्ट अ मिनट। सो यस, और अगर 400 वर्ड्स का है तो 400 वर्ड्स का तो आई बिलीव आपको 400 ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 400 को भी 380 तक भी टारगेट करेंगे तो इट इज़ वेल इनफ, ठीक है। और यस, दिस थिंग, सपोज करो अब आपने आंसर लिख लिया है, आप टाइमर लगाओ और वर्ड्स टाइप करो नॉर्मली रैंडमली एक पैराग्राफ, एंड जस्ट एनालाइज कि आपके वर्ड्स पर मिनट क्या है, सो दैट आपको ये समझ में आए कि मुझे कितना इंप्रूव करना है। सो यू कैन डू दैट, ठीक है। अब मैं आपको मेन जो चीज़ है वो बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्रक्स है पूरे वीडियो का, एंड दैट इज़ हाउ टू रिवाइज द डिस्क्रिप्टिव कंटेंट। क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया है, बहुत सारा लिख लिया है, मेरे पास 4 दिन बचे हैं, मेरे पास 2 दिन बचे हैं, बट मैं रिवाइज़ कैसे करूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ रिवाइज़ करना है। द हेडलाइंस, सॉरी द सब हेडिंग्स एंड पोस्ट दैट, मेरे को डेटा स्कीम्स या जो भी है वो सब कैसे मैं अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करूँ, क्योंकि जब आप बहुत सारा पढ़ लेते हैं देन your mind is not organized to reproduce that. So how to revise that? तो इसके लिए मैं आपको मेरी एक्चुअल PDF दिखाने वाली हूँ, जो मैंने बनाई थी मेरे लिए। इट वॉज माई ओन मेड वीडियो बेस्ड, जो भी मैंने पढ़ा है इतने सालों में। तो जिसको स्टार्टिंग से कर देते हैं। तो ठीक है, ये मेरा PDF है, ये 100 पेजेस का है, बट आपको 100 पेजेस का नहीं बनाना है, ओके। और तो मैं क्या करती थी, अब हम थोड़ा और भी प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि कैसे क्या करना है। आई थिंक मैंने प्रैक्टिकल बातें ही करी है, हवा में कुछ नहीं उड़ाया है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग का कुछ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इसको जूम करूँगी, जस्ट अ मिनट, मेरे को पहले देखने दीजिए कि कहाँ से शुरू है ये। खुल जा शिमशिम। अच्छा, ये मेरी देखो, मैं ऐसे बातें करती थी खुद के साथ, यू हैव टू फोकस ऑन योर टाइपिंग अ लॉट बिकॉज डिस्क्रिप्टिंग इज योर सेवियर। बिकॉज मेरा डिस्क्रिप्टिव अच्छा था तो ऑब्जेक्टिव मुझे ऐसा लगता था मेरा एवरेज है ना। टाइपिंग जो है कैसी होनी चाहिए, स्पेलिंग्स अपने आप ठीक हो जाएगी, टाइपिंग पे फोकस करो एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज़ काइंड ऑफ सेल्फ टॉक्स जो आप खुद कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ठीक है। तो सबसे पहले लेट से मैंने मेरे को अगले 5 दिन का मैंने सोच लिया है कि मुझे ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो मैं ऐसे लिख लेती थी और मैं हाईलाइट कर लेती थी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप इसको गूगल पे जाएं, है ना। और वन मोर थिंग, आपको एक कीबोर्ड लेना पड़ेगा। इफ़ यू हैव अ लैपटॉप यू नीड अ कीबोर्ड, जो कि एग्जाम हॉल में जो आपको कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। यू कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन लैपटॉप वाला कीबोर्ड, क्योंकि मैंने भी एक कीबोर्ड ले लिया था एंड ये इतना महंगा नहीं आता है। जस्ट आपको मैं अवेयर करवा रही थी, वैसे आपको पता होगा इतना। तो सपोज़ मैंने ये सारे टॉपिक्स लिख लिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में ही लिखने हैं। लेट्स से मैंने अगले 5 दिन के टॉपिक्स लिख लिए कि मुझे 1-2 थीम्स आज प्रिपेयर करनी है, ठीक है। 2 थीम्स इज़ मोर देन इनफ फॉर पर डे। तो ये मैंने थीम्स, लेट्स से अपना ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, मुझे ऐसा लगता था एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर डेप्थ, इरीगेशन पे भी एक जो है माइक्रो इरीगेशन जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मार्केटिंग दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे वुमेन भी हो गया, फिर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो गया। शैल आई जूम इट? I think it's good now. Oh my God. ठीक है, तो मैं क्या करती थी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास 2 PDFs होती थी, गूगल डॉक पे मैं 2 PDFs बनाती थी। पहले PDF में मैं आंसर लिखती थी, जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे आंसर लिखना है, और उसमें मुझे कुछ भी ऐड करना होता था तो मैं उसमें ऐड करके आई यूज़ टू कॉपी एंड पेस्ट इन अनदर PDF। वो इसलिए क्योंकि ये तो मैंने अभी अभी लिखा है, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स करके आई कैन जस्ट मेक अनदर PDF फॉर द लास्ट मिनट रिविजन।
जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला टॉपिक लगा लो, ये 23 पेज पे कैसे आ गया, कोई बात नहीं, कोई भी पेज पे आया हो, इट वाज जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल। हम एक टॉपिक ले लेंगे एंड विल डिस्कस इट। चलो मैं आपको वही दिखा देती हूँ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला, पेज नंबर 45। ठीक है, तो लेट्स से आपने एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग टॉपिक है, वो आपको आपने पढ़ लिया है, राइट। तो उसके जो माइंड मैप्स है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइंड मैप्स कैसे बनेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे उसको लिखना है, एंड देन कॉपी पेस्ट मैं आपको वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, लेट्स से सबसे पहले आपको एग्जाम में ये बताना पड़ेगा कि ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग है ना। व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये क्यों नहीं हो रहा है ढंग से। आई थिंक ये जूम कर रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा इसको आगे चलने में इश्यू हो रहा है। थोड़ा जूम कम कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, खुद से क्वेश्चन बना लेती थी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, व्हाट आर द इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करती हूँ। ठीक है, ये आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट, वी आर हेयर टू जस्ट टॉक अबाउट कि कैसे लिखना है, कि ये जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, ये शायद मैं एग्जाम में नहीं लिखती, बट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि अगर मुझे यहाँ से कुछ कोट करना है एग्जाम में, तो मुझे वो याद रहेगा एज अ फैक्ट कि इतनी सारी जो मंडीज़ हैं वो ऑलरेडी है एपीएमसी में, एंड इतने सारे फार्मर्स एंड इतना जो ट्रेडर्स हैं वो ई नैम पे एनरोल है। ठीक है, तो आई कैन राइट दैट, नॉट दैट कि आपको आंसर में लिखना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो सपोज करो मुझे एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, ये दिखाई देगा। It's not working. पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है। चलो मैं आपको वही दिखा देती हूँ, मुझे ये नोटबुक यूज़ नहीं करना आ रहा है। एनीवेज आई थिंक ये विजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से आप यूर राइटिंग इट, तो आप माइंड मैप्स कैसे बनाएंगे अपना पेन एंड पेपर पे। ठीक है, आप यहाँ पे लिखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, पूरा नहीं लिखना है, जस्ट राइट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आप सोचोगे कि हाँ मुझे यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, कंप्लीट क्वेश्चन में जो पूछा है आप उसको डील करेंगे। लेट से यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है, राइट। अब कुछ बच्चे होंगे शायद इंपॉर्टेंस 5 पॉइंट्स में से डाल देंगे 1 2 3 4, बट अगर आपको चाहिए कि आपको अपना कंटेंट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाना है, फिर आपको उसमें सब टॉपिक्स जो है वो डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को इंपॉर्टेंस बतानी है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ 4-5 चीज़ें चलती होंगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इकोनॉमी लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है ना, इकोनॉमी लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। ठीक है, फिर मैं देखूंगी सोशल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है। व्हेन आई से सोशल लेवल पे इंपॉर्टेंस है, दैट मीन्स व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग फॉर फार्मर्स, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर मैं बोलूँगी कि चलो ठीक है, ये दो चीज़ होगी। और सपोज करो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ही लिखाया हुआ है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, इश्यूज़, कि व्हाट इज़ द इश्यूज़ इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और जब मैं इश्यूज़ लिखूंगी, फिर से मैं उसकी हेडिंग्स बनाऊंगी, फिर से मैं उसकी सब हेडिंग्स बनाऊंगी, तो इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड क्लटर्ड है वो डिवाइड कर लेता है खुद से ही, कि फॉर एग्जांपल मुझे इश्यूज़ में इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ लिखने हैं, यानी गवर्नमेंट द्वारा जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी एरो बना के कि एपीएमसी इश्यूज़ हैं, राइट, मोनोपोली है, प्राइवेट ट्रेडर्स ज़्यादा हैं, कार्टलाइजेशन है मार्केट के अंदर, एपीएमसी ढंग से काम नहीं कर रही हैं, है ना। फिर मैं लिखूंगी पॉलिसी इश्यूज, कि क्या ऐसी कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, दे कैन बी पॉलिसी इश्यूज ऑल्सो। फिर मैं लिखूंगी कि इश्यूज में और क्या आ सकता है,
हाँ, क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, है ना। अब मान लो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज दैट इज रिलेटेड टू lack of post harvest structures. There is no warehouse, there is no storage, right? You're not able to store it. If you're not able to store your products, वो सारे खराब हो जाएंगे, and there is no cold chain facilities. तो there are post harvest infrastructures में इतनी सारी issues हैं, तो ये हो जाएगा. Then you can write that there are far away mandis. मंडीज इतनी ज़्यादा फार है, दे आर लाइक वेरी वेरी फार. कहीं पे इट इज़ 80 स्क्वायर किलोमीटर, कहीं पे इट इज़ 500 स्क्वायर किलोमीटर. सो हाउ द फार्मर्स वुड गो टू द मंडीज? तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि फार अवे मंडीज. तो ये सिर्फ एक माइंड में बन रहा है कि हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस. अब मान लो आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया, आपको इश्यूज पता चल गया, देन यू हैव टू राइट वे फॉरवर्ड माइंड मैप्स में. अब देखो, चलो मैं आपको पहले बता देती हूँ. अब वे फॉरवर्ड में भी आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बता सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि जब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, लेट्स से आपको क्वेश्चन में इश्यूज पूछे गए हैं, तो आप उसकी हेडिंग और सब हेडिंग्स बनाओ. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, ये 2 पॉइंट्स है. पॉलिसी इश्यूज, मान लो 2 पॉइंट्स और लिख दिए. इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, मान लो 2 पॉइंट्स और लिख दिए. बट अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको वे फॉरवर्ड कभी नहीं पूछा जाएगा, बट आपको लिखना होगा कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर इट. तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इंपॉर्टेंस के भी सब सेक्शंस बनाओगे, है ना. इश्यूज के भी सब मतलब हेडिंग्स, ये होगी सब हेडिंग्स, वो बनाओगे. और वे फॉरवर्ड में भी आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाओगे. तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके क्वेश्चन में आप 3 या 4 चीज़ों से डील कर रहे हैं, 3-4 चीज़ मीन्स सपोज इंपॉर्टेंस, इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड, तो आप वे फॉरवर्ड की सब हेडिंग्स मत बनाइए, सिर्फ डायरेक्ट लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ लिखना है कि हमें APLM एक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, जो भी हमारा नया वो है. फिर उसके बाद हमें फार्मर्स को ऑन बोर्ड करना चाहिए, लेट्स से. फिर उसके बाद मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, लेट्स से, एंड मुझे पोस्ट हार्वेस्ट चीज़ें बनानी चाहिए, लेट्स से. तो उसके हेडिंग्स मत बनाओ, उसको डायरेक्टली लिख दो. बिकॉज अगर आप एग्जाम में यू विल बी ट्राइंग टू डू ईच एंड एवरी परफेक्ट थिंग, तो आप 2 क्वेश्चन तो अच्छे कर पाओगे, 2 क्वेश्चन आप एवरेज कर पाओगे. एंड द टास्क इज नॉट परफॉर्मिंग 2 क्वेश्चंस वेल, द टास्क इज टू परफॉर्म ऑल द क्वेश्चंस अबव एवरेज टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करती थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी परफेक्ट काइंड ऑफ थिंग, कि मुझे ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, ये भी लिखना है. इससे क्या होता था, मैं एक क्वेश्चन 30 मिनट्स में करती थी, जो कि मैक्सिमम 25 मिनट्स होना चाहिए 600 वर्ड्स का. तो इसका मतलब मैं 10 मिनट में पीछे चल रही हूँ. तो इससे क्या होता था, मेरे को अंडर कॉन्फिडेंस फील होता था कि भाई सोनिका तो लिख ही नहीं पा रही है. तो रादर देन गोइंग टुवर्ड्स सच अप्रोच, पहले से ही अपनी अप्रोच क्लियर करके रखो कि इतना ही लिख सकते हैं, इतना मेरे पास टाइम है, और उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है. तो जैसे फॉर एग्जांपल 14 आपके पास 20 मिनट्स होते हैं फॉर द 400 वर्ड्स, आपके पास 25 मिनट्स होते हैं फॉर द 600 वर्ड्स. तो मैं ऐसे टारगेट करके चलती थी कि अगर मैं 25 मिनट्स का सोचूंगी तो मेरे को 27 मिनट लग जाएंगे. तो 22 मिनट्स का सोचती थी तो वो 24 तक पहुंचता था. तो आपको ये सारी कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी माइंड में कि कितने टाइम मैं अपना आंसर कर रही हूँ. तो मान लो मैंने ये माइंड में बना लिया, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 4 बार 5 बार भी ऐसे कर लोगे ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए माइंड मैप्स बनाना. एंड समटाइम्स पहले मैं क्या करती थी, शायद माइंड मैप्स नहीं बनाती थी, बट ठीक है, अगर आपके माइंड मैप्स ऑलरेडी माइंड में चल रहे हैं, देन आई डोंट थिंक इतना टाइम लगता है, हार्डली 1 मिनट लगेगा आपको. और ये तो अभी इतना टाइम लग गया एक्सप्लेन करते हुए, तो आप ये प्लीज़ बना लेना, ठीक है. अब देखते हैं कि मैंने आंसर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. पहले डेफिनेशन लिखा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. क्यों चाहिए मुझे एग्रीकल्चर मार्केटिंग? वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू. बिकॉज हमें पता है कि एक्सपोर्ट्स जो हमारे यहाँ होते हैं, दे आर नॉट वैल्यू एडिड, है ना, जिसकी वजह से हमें लो प्राइस मिलता है. तो मैंने शायद यही लिखा होगा, ऐड वैल्यूज टू द फार्म प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडिंग एंड गुड क्वालिटी प्रैक्टिसेस दैट एड्स वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट. एंड मेक श्योर कि 1 या 1.5, उससे ज़्यादा आपका एक पॉइंटर फॉर्मेट में ज़्यादा लाइन्स नहीं होनी चाहिए. बिकॉज यू हैव टू फोकस. आप जितने पॉइंट्स लिखो ना, ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन राइटिंग 3 पॉइंट्स और उसको इलैबोरेट लिखोगे. उसको वो नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि इस बंदे को ज़्यादा पॉइंट्स पता है यहाँ पर, ठीक है. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डोमेस्टिक मार्केट्स, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्लोबल मार्केट्स एज वेल.
राइट। जीडीपी ऑब्वियसली अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स वैल्यू एडिशन करके अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग द जीडीपी। फिर मैंने यहाँ पे एक फैक्ट भी डाल दिया कि देखो प्रेजेंट जो जीवीए है हमारा इतना है, और हमारा जो इंडिपेंडेंस के वक्त हमारा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वॉज 40%, और कहाँ हम 18 to 20% पे अटके हुए हैं। तो आपको यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी है, यू हैव टू राइट योर आंसर इन अ वेरी एनालिटिकल एस्पेक्ट, कि जैसे आप आंसर को एनालाइज कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा और रटा और आपने लिख दिया, आपको खुद का माइंड वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, सिंस क्योंकि देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, इट इज नॉट दैट कि एक प्रोडक्ट है आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है कि मेरा प्रोडक्ट बेचना है मुझे। नो, व्हेन आई से एग्रीकल्चर मार्केटिंग इट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फार्मर गेट्स to the consumer plates. It means it involves everything, government, मंडीज, फिर उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचेगा वो, है ना। ये पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। जनरली वी थिंक कि बस मंडी तक पहुंचना काम खत्म हो गया, नो इट्स नॉट दैट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि हमारा अभी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कितना है। तो आई ट्राई टू इनकलकेट कि मेरे पॉइंट्स अगर 4-5 पॉइंट्स है उसमें 2 पॉइंट्स में अगर मैं डेटा बता दूंगी तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। Therefore it is important कि हम ऐसे रिफॉर्म्स लें। टेक्नोलॉजी, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, फॉर एग्जांपल चिलिंग फैसिलिटीज़ हो गई या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो गई, तो ये क्या था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दैट वाई डू आई नीड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फिर सोशल इंपॉर्टेंस, डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, इसलिए मुझे एग्रीकल्चर मार्केटिंग चाहिए। रूरल ग्रोथ, अभी बताओ आप, मोर देन 55% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड देयर अबाउट दैट 60% ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सो येस, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर रूरल ग्रोथ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये पॉइंट कहीं ही पढ़ा होगा, है ना, मैंने ये पॉइंट कहीं पढ़ा नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट आई कनेक्टेड एग्रीकल्चर विद द रूरल, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट नाबार्ड, है ना। फिर आता है गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो हमें ये बताना है कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है। इट मीन्स यू आर टेलिंग द स्कीम्स। शायद मैं ये बताना भूल गई आपको गाइज, अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं ना नाबार्ड में, यू हैव टू राइट स्कीम्स, नो मैटर वो आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी गई है या नहीं लिखी गई है, आपको स्कीम्स लिखना ही है। मतलब आपके एट द एंड ऑफ द आंसर में यू नीड टू राइट द गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट एफर्ट्स, बिकॉज नाबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस वेरी मच ऑन द स्कीम्स, एंड यू मस्ट बी अवेयर कि मुझे स्कीम्स लिखना ही है, कोई भी टॉपिक पे आ जाइए। जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी मैंने आपको बताया था कि हॉर्टिकल्चर मिशन लिखना है, पल्सेस वाला लिखना है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने लिखा कि देखो APMC एक्ट 2023 इज़ देयर, आप पढ़ सकते हैं बाद में, APLM एक्ट इज़ देयर, राइट। फिर उसके बाद मैंने इसके सब पॉइंट्स बता दिए, आप एक साथ भी बता सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ये शायद घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो फिर इजी लगता है, बट एग्जाम में आप यहाँ पर ही बता दीजिए कि ये एक्ट बोलता है कि सिंगल पॉइंट लवाई होगा, लाइसेंसिंग जो है बायर्स के लिए ईजी होगा, फिर ENAM भी है आपके बोर्ड पे, ठीक है, एग्री मार्केट नेट है, जो चौपाल भी है। अब शायद मैंने ये PDF पहले बनाया होगा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ होगा नेक्स्ट ईयर कि नहीं रे, हम थोड़ा सा और इसको स्कीम के पर्सपेक्टिव से लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल MSP एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट अंडर PM आशा, है ना, कि भाई पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है, एज यू ऑल नो कि स्कीम तो है, बट पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट एज मच जितना कि उसको मतलब बताया जाता है, राइट। ये हो गए गवर्नमेंट स्कीम्स वाला, और आई वुड सजेस्ट यू कि ये वाला जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ये आप लास्ट में लिखे, पहले आप इश्यूज लिखे फिर गवर्नमेंट स्कीम्स लिखे, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रक्चर लगेगा। ये शायद मेरी पहले की PDF होगी। तो इम्पॉर्टेंस, देन इश्यूज, देन स्कीम्स, एंड देन वे फॉरवर्ड, राइट। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इश्यूज में भी फिर आप ये सारी चीज़ें बताई हुई है कि रिस्ट्रिक्टिंग प्राइवेट प्लेयर्स, कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो मोनोपली है ट्रेडर्स की, जिसकी वजह से कार्टेलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, फार्मर्स को भी कमीशन बहुत कम मिलता है, दे आर लेफ्ट विद ओनली 50% ऑफ द मार्जिन, राइट। मार्केट्स आर हाईली फ्रेगमेंटेड, फॉर एग्जाम्पल 500 स्क्वायर किलोमीटर अवे मंडी है फार्मर्स में इन सम स्टेट्स, एंड इन सम स्टेट्स इट इज़ 11,000 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आप आगे देखेंगे कि अशोक दलवाई कमेटी रिकमेंडेशन है कि जो मंडी है वो आई थिंक 80 स्क्वायर किलोमीटर में होनी चाहिए, तो वो मैंने वे फॉरवर्ड में डाला होगा, ठीक है, ओके।
फिर मैंने लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का इशू है, जिसकी वजह से आपका एज दे आर ससेप्टेबल टू पेस्ट अटैक, देन देयर रेन्स, मंडीज इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली द पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट द मंडीज इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो लैकिंग, लाइक देर इज लैक ऑफ ग्रेडिंग, पैकेजिंग फैसिलिटीज़, कंप्यूटराइज सिस्टम्स, है ना. सो उससे क्या होगा, रिजल्टेड इन करप्शन, डिलेड पेमेंट्स टू द फार्मर्स, देन देर इज लैक ऑफ कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी टू द फार्मर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, supply in the market gets increases, price get decreases, है ना, and the farmers are basically vulnerable कि उन्हें आज ही बेचना है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि they're not able to wait for the right time in the market, right? Lack of formal credit leads farmers to pledge their harvest at lower prices against loans. जैसे मनी लेंडर से उन्होंने कोई चीज़ ले ली और अपने जो फसल है उसको कम रेट्स पे उसको देना पड़ेगा. अगर उसके पास फॉर्मल क्रेडिट नहीं है तो ये शायद मैंने कहीं पढ़ा नहीं होगा, बट आई वॉज एबल टू रिलेट विद इट कि भाई अगर उसके पास पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो मनी लेंडर से उसने कुछ उधार लिया होगा या फॉर्मल क्रेडिट वो नहीं ले पाया होगा, तो वो वीक पड़ जाएगा एंड उसको प्राइसेस लो प्राइसेस पे अपनी जो फसल है वो बेचनी पड़ेगी टू द मनी लेंडर, राइट. देन आई हैव मेंशन्ड पॉलिसी इश्यूज़, ठीक है, कि मल्टीपल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, बिकॉज APMC जो रेगुलेटर भी है और खुद मार्केट भी बनी हुई है, मतलब क्योंकि जो कमिटी बैठती है खुद ही रेगुलेट कर रही है और खुद ही मार्केट कर रही है, तो ये चीज़ जो है पॉलिसी इश्यूज़ है. फिर आता है वे फॉरवर्ड. एज आई टोल्ड यू कि वे फॉरवर्ड में आपको इतना ज़्यादा सब हेडिंग्स नहीं बनाना है, बट मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हर चीज़ का हेडिंग सब हेडिंग बनाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैंने भी एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा था, ठीक है. बट फिर भी लेजिस्लेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स कि आप अपने बोर्ड्स में फार्मर्स को लेके आइए, है ना. APLM एक्ट को अच्छे से इन्फोर्स कीजिए. वाई? बिकॉज सिंगल लाइसेंस है ना, ईजी है, E-NAM है, कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट्स, राइट, कि आपकी जो मार्केट है वो 5 किलोमीटर रेडियस में होनी चाहिए, 80 स्क्वायर किलोमीटर एज पर द अशोक दलवाई रिकमेंडेशंस. तो कहीं पढ़ा होगा, फिर मैंने माइंड मैप्स में लिखा होगा, राइट. और नंबर ऑफ मार्केट्स मस्ट बी इंक्रीज्ड टू 10,000, ये अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशन ही है. देन इंटीग्रेशन ऑफ E-NAM फॉर बेटर प्राइसेस टू फार्मर्स, राइट. और एग मार्केट नेट आपको पता है कि इट इज़ बेसिकली अ पोर्टल जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट. फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया होगा, बट आपको यहाँ पे यही लिखना है कि भाई आपको जो है यू शुड मोर बी एबल टू फोकस ऑन द पोस्ट हार्वेस्ट एंड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ एंड मेकिंग द रोड सो दैट आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाए. अच्छा, मैं एक बात और बताना भूल गई. आई नो द वीडियो इज़ गोइंग वेरी लॉन्ग, है ना. मैं एक बात आपको ये बताना भूल गई. जब आप स्टार्ट करेंगे ना, मैंने आपको ये बोला था कि आप एक जगह से कंटेंट पढ़ेंगे एंड मैंने ये बोला था कि आप उसको इमीडिएटली 5-10 मिनट बाद लिखेंगे. मैं आपको एक बात बताना भूल गई. जैसे मान लें आपने कोई चीज़ रीड करी, तो जब आप उसको लिखेंगे उसके बीच में एक काम और करना, क्योंकि मैं ऐसा करती थी कि सपोज़ यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, मैंने यहाँ से कुछ पढ़ लिया, अब मुझे उसको प्रॉपर आंसर लिखना है, बट उसके बीच में आप क्या करना, जो जहाँ पे भी आप लिखोगे ना उसी PDF पे, लेट्स से जहाँ पे भी आप लिखोगे उसी PDF पे मेक हेडिंग्स. डजेंट मैटर कि वो आपके दिमाग में है कि नहीं, पढ़ के लिखो, कुछ भी नहीं आएगा आपको शुरू में. ऐसा नहीं है कि आप पैदा ही ऐसे हुए हो, आपको वो चीज़ लर्न करनी पड़ेगी. तो सपोज यही टॉपिक है, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कहीं पे, फिर मैं ऐसे हेडिंग्स डाल लेती थी कि अच्छा मुझे ये लिखना है 1 2 3, मुझे इंपॉर्टेंस लिखना है 1 2 3, मुझे स्कीम्स लिखनी है 1 2 3, मतलब ऐसे 1 2 3 भी नहीं डालूंगी, सिर्फ ऐसे लिखूंगी ये. फिर मैं इसको देख के मैं अपना आंसर लिखती थी, क्योंकि आप एक बिगिनर हो अगर, तो आपको यही चीज़ है. अब मान लो आपने पूरा 7-8 पेज का कुछ पढ़ लिया है, तो आपका माइंड इतना ऑर्गेनाइज नहीं फील करेगा. बट अगर आप देख के ये पॉइंट्स लिखोगे, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको देख के लिखने गाइस, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप लिखने हैं. फिर इसको देख के आपको आंसर राइटिंग करनी है अच्छे तरीके से, है ना. तो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी. एंड और क्या बताना था मुझे, यस, लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा जो मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम है, ये खोल के नहीं रहा, 1 सेकेंड. I want to introduce you our mentorship guidance program guys, and वैसे तो आप जो भी कोर्स लेते हैं उसमें वो चीज़ अवेलेबल होती है, बट दैट इज़ 15 डेज़ में होता है. ये वाला जो है स्पेसिफिकली बनाया गया है, क्यूरेट किया गया है आपके लिए. इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प ड्यूरिंग द जर्नी,
तो ये 7 days में आपका जूम सेशन होता है फॉर नबार्ड. अगेन आई रिपीट, आई विल बी टेकिंग द सेशन फॉर द मेंटरशिप, है ना. उसमें आपको वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे कि ये अब पढ़ना है, इसको कैसे करना है. वीकली क्विजेस दिया जाएगा. जस्ट अ सेकेंड. सो दैट आप ये मत सोचे कि मेरी जो क्या बोलते हैं जर्नी है उस मेरे साथ कौन है ना. ग्रुप स्टडीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. सपोज कीजिए 20-30 बच्चे एक साथ है, आप चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट कर सकते हैं एक दूसरे पे. आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं खुद पे. यू गेट कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, यू गेट कनेक्टेड विद द पीपल. मेक श्योर द स्टूडेंट्स आर लिमिटेड. बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो एक आई बिलीव ये सब चीज़ें आपको पता होगी, है ना. मैक्सिमम एक सेशन में 50 बच्चे होंगे. लाइव सेशन होगा. छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डाउट्स आप कुछ भी पूछ सकते हैं. और आई थिंक एक इंटरैक्टिव चीज़ें होगी जब आप लेट्स से यू आर गोइंग सोलो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ईच एस्पेक्ट. तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है ना. बट व्हेन देयर इज समवन विद यू to handle your questions, to handle your queries weekly and time to time, you write all your questions, then you ask in the live session, है ना. हो सकता है वही क्वेश्चन किसी और का भी आंसर हो, है ना. किसी और का भी क्वेश्चन हो, उसको भी वही आंसर चाहिए हो, तो वो जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है. बिकॉज यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी. आपको लगेगा कि अरे ये भी तो यही फेस कर रहा है, ये भी तो यही फेस कर रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रही है ऐसा. तो इसीलिए ये आई वुड सजेस्ट, अगर आप लेना पसंद करें तो प्लीज़ 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 यू कैन गो एट आवर वेबसाइट, दैट इज CGB Mentors. आपको वहाँ पे मेंटरशिप कोर्स प्रोग्राम फॉर NABARD A 2026 मिल जाएगा. बिकॉज यू हैव टू स्टडी स्मार्ट विद द हार्ड वर्क. दिस उसका जो वैलिडिटी है वो ये NABARD Grade A 2026 का Phase 2 है. सो आई थिंक बहुत बड़ा हो गया वीडियो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने बोला इट वॉज टू द पॉइंट, क्रिस्प, प्रैक्टिकल. ठीक है, बस मुझे इतना ही बोलना था. और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं देन यू कैन कमेंट. एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट, बिकॉज इट विल मोटिवेट मी कि हाँ मेरा थोड़ा सा मेहनत काम आया है. यू कैन ईमेल अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस अगर आपको ये थोड़ा सा भी क्वेरीज है अबाउट दिस प्रोग्राम. एंड येस, हम आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे इन दिस entire जर्नी. So till then, see you, goodbye, and hope you're doing well. You're watching CGB Mentors with Sonika. Bye.